In the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत My है। dear children of God, I am delighted to meet you today evening. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, आज शाम हम आपसे मिलके बहुत खुश हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I am sure this special meditation is going to have an impact in your life. मैं निश्चित जानता हूँ कि ये विशेष मनन आपके जीवन में एक प्रभाव लेकर आएगा। If you take the word of God seriously, अगर आप परमेश्वर के वचन को गंभीर मानते हैं, there is no doubt you are going to have spiritual growth. कोई शक नहीं कि आपके आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी होगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And the topic for today's evening discussion is Shabbat. आज शाम के डिस्कशन का टॉपिक है शबात। Now we all have an understanding of Shabbat. हम सभी का शबात के विषय पर, विश्राम दिन के विषय पर एक सोच है, एक समझ है। First 6 days God worked. पहले 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, On the 7th day He rested. 7वें दिन वो विश्राम लिए। With that we have drawn into certain conclusions. इससे हम कुछ कंक्लूशंस में आ जाते हैं। Now listen to this message with a very open mind, इस संदेश को एक खुला मन के साथ सुनिए, and the word of God will speak to you. परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। In the New Testament, we frequently come across a term called Shabbat. नए नियम में हम इस शब्द को कई बार देखते हैं और वो शब्द है शबात। In the Old Testament, let us turn our Bible to Exodus chapter 20 verse 8. पुराने नियम में हम खोलेंगे निर्गमन 20 उसका 8 पद। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण कर रखना। Remember the Sabbath day by keeping it holy. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। Now, the Seventh day Adventists are saying we are violating the command of God. The seventh day should be Saturday. और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के लोग ऐसे मानते हैं कि हम परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं और सैटरडे ही सेवेंथ डे है। Now, frequently this contradiction or some information which you are not following it correctly, this accusation comes upon us. कई बार हमारे ऊपर ये दोष आता है कि आप ठीक से इसको पालन नहीं कर रहे, ठीक से उसको पालन नहीं कर रहे हैं। Now they say we have to be worshipping on Saturday. वो कहते हैं कि सैटरडे के दिन में ही आराधना करना है। It's time we become more knowledgeable in this area. अभी समय हो चुका है कि हम इस क्षेत्र में और भी ज्ञान प्राप्त करें। If there is a Seventh day Adventist member, अगर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के मेंबर यहाँ पर है, when we talk to them, अगर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के लोग से हम बात करते हैं, the discussion becomes very passionate. और उसका जो वाद विवाद बहुत गहरा चला जाता है, And ultimately it ends up in very tough arguments. पूरे जोश के साथ बात करते हैं और अंत में वाद विवाद में खत्म हो जाती है। Actually, both the parties will not be aware exactly what they are talking about. पर एक्चुअली दोनों लोगों को ठीक से उसका ज्ञान नहीं रहेगा कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। The first thing which we have to know, पहली बात जो हमें जानना है, Saturday and Shabbat are not the same words. सैटरडे और शबात दोनों एक ही शब्द नहीं हैं। They are not synonymous. वो एक ही अर्थ शब्द नहीं है They don't mean the same thing. और दोनों का अर्थ एक नहीं है। Saturday is named after a lunar god. सैटरडे जो है वो एक चंद्र देवता के नाम से आती है। It is originally called Saturn Day. Saturn, Saturn Day. That is the original name. उसका असली नाम है सैटर्न डे। इसका SATURN सैटर्न डे। Most of the days in English comes from Latin, Greek mythology.
इंग्लिश में जो दिनों का नाम है वो लैटिन या ग्रीक कहानियां कथा से आती है. After the gods of moon and star, even the months of the year is being named. चांद और तारे के देवताओं के नाम से ही महीने का नाम रखा गया है. But the Jews doesn't call the name of the week or months like that. पर यहूदी महीनों का नाम इस प्रकार नहीं कहते हैं. They don't call April or they don't call it May. वो अप्रैल या मई ऐसे नहीं कहते हैं. They call the first month as Nisan. पहले महीने को निसान कहते हैं. It has to do something with the agricultural calendar. वो एग्रीकल्चरल कैलेंडर या खेत के जो खेती बाड़ी है उसके कैलेंडर के अनुसार ये नाम है. So first, if we have understood Saturday and Sabbath are not the same, अब पहली बात, अगर हम समझ गए हैं कि सैटरडे और शबात दोनों एक ही दिन नहीं है, then next we will go on to understand what does Shabbat mean. तो उसके बाद हम जाएंगे कि शबात का अर्थ क्या है. I am going to tell you the definition of Shabbat मैं शबात का अर्थ आपको बताने वाला हूँ. and you have to repeat after me. आपको मेरे बाद कहना होगा. Shabbat means शबात का अर्थ है to sit down. बैठना. Everybody say बैठना. सब कहिए बैठना. 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 Now what are you doing now? अभी आप क्या कर रहे हैं? You are in आप कहाँ हैं? Shabbat. शबात कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. The meaning of Shabbat is शबात का अर्थ है sit down. बैठना. Sit down. बैठना. It's very clear. बहुत स्पष्ट है. Exodus chapter 20 verse 8 says, निर्गमन 20 उसका 8 कहता है, remember to keep the day holy. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना. Now, the purpose of Shabbat, और अभी शबात का उद्देश्य we are going to discuss now. अभी हम देखने वाले हैं. Some people think the highest holy day for the Jews is the Passover. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यहूदियों के लिए परम पवित्र दिन है फसह का पर्व. But actually the truth is not that. पर सच्चाई ये नहीं है. The highest holy day for a Jew, एक यहूदी के लिए परम पवित्र दिन ये है. it is the Shabbat. वो है शबात का दिन. It comes once in a week. ये हफ्ते में एक बार आती है. It is not the Passover. ये फसह का पर्व नहीं है. It is not the Feast of Pentecost. जो Feast of Pentecost. हफ्तों का पर्व नहीं है. And it is not the Feast of Tabernacle. झोपड़ियों का पर्व नहीं है. I still remember the Hebrew conference which I attended in the year 2014. 2014 में जो हिब्रू कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किया था वो अभी भी मुझे याद है. It was in Coimbatore in a hotel called Lee Meridian. और कोयम्बतूर में ले मेरिडियन के होटल में हुआ था. There were many speakers, including Dr. Koch and other speakers came for the meeting. और वहां पर बहुत सारे लोग जो बात करने के लिए आए थे, सिखाने के लिए. डॉक्टर कोक भी वहां पर शामिल थे. One of the guest speaker was a Jew. वहां पर एक गेस्ट स्पीकर यहूदी थी. She was not a messianic Jew. वो मैसियानिक यहूदी नहीं थी. She was a Mosaic Jew. वो मूसा का यहूदी थी. So she came to give lecture to us. तो वो हमें सिखाने आई थी. Her name was Sister Benita Raffaeli. उनका नाम था सिस्टर बेनीटा रफेली. So we were given the schedule, what is going to happen, who's going to speak when. तो हमें स्केड्यूल दिया गया था कि कौन कब बात करेंगे. But on the day on Friday when she was supposed to speak, पर फ्राइडे के दिन में जब उनकी बारी आई थी बात करने का, she covered on Thursday itself, she covered her schedule. थर्सडे को ही अपना पूरा स्केड्यूल को कवर कर दी. वो She completed what she has to teach. जो भी उनको सिखाना था सब कुछ वो खत्म कर दी. And she took a flight and she went to Israel. तुरंत एक फ्लाइट पकड़ के इजराइल चली गई. So we asked why suddenly she has gone one day earlier. तो हमने पूछा क्यों अचानक एक दिन पहले ही वो चली गई. They said उन्होंने
she wants to attend the Shabbat. उन्होंने कहा कि वो शबात मनाना चाहती है। I was really shocked. मैं सुनकर अचंबा हो गया। For a weekly feast, that is Shabbat, she has gone from India to Israel. और हफ्ते में एक बार जो होता है उस शबात, उसके लिए वो इंडिया से इस्राएल चली गई। They follow it very strictly. वो बहुत गंभीर रीति से उसका पालन करते हैं। Unfortunately, we take it casually. पर दुख की बात है कि हम उसे हल्का लेते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। But after hearing about Shabbat today, पर आज शबात के बारे में सुनने के बाद I am confident it's going to bring a change in our attitude towards Shabbat. मैं निश्चित जानता हूं कि शबात के विषय पर हमारा सोच बदलने वाला है। So we have understood now the definition of Shabbat. अभी हम शबात का अर्थ को समझ लिए हैं। Shabbat means to sit down. शबात का मतलब है बैठना। Now, what is the purpose behind sitting down? और अभी बैठने के पीछे क्या उद्देश्य है? And the Bible also says, honor it and keep it holy. हाँ, बाइबल ये भी कहती है उसको पवित्र मानो और उसको स्मरण करो और उसकी आदर दो। First of all, when we sit to make it holy, पहली बात, जब हम बैठते हैं उसको पवित्र बनाने के लिए, we have to understand it has nothing to do with our holiness. पहले हमें ये समझना है कि हमारे पवित्रता के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। First, we need to have understanding that we are not holy. पहले हमें इस सोच में आना है कि हम पवित्र नहीं हैं। Now, many people connect holiness with many things which is actually wrong or immaterial. और कई लोग पवित्र इस शब्द को कई सारे बातों के साथ जोड़ते हैं जो संसारिक है, जो भौतिक है। Now, when you hear the teachings of many people, जब हम कई लोगों की शिक्षा को पढ़ते हैं, some people connect holiness and makeup. कुछ लोग पवित्रता को मेकअप के साथ कनेक्ट करते They हैं। say, see, this girl has put lipstick and how she is holy. Now the question is asked. और ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, अरे देखो ये लड़की लिपस्टिक पहन रही तो कैसे पवित्र हो सकती है? Now they connect makeup with holiness. तो मेकअप को पवित्रता के साथ जोड़ते हैं। I have heard one pastor preaching that a person has come inside the church with shoes, so he is not holy. तो एक प्रचारक को मैंने ऐसे सुना, वो प्रचार करते हुए कि अगर कोई व्यक्ति शू पहनकर अंदर आ जाते हैं कलीसिया में तो वो पवित्र नहीं है। Some people connect holiness with dress. कुछ लोग पवित्रता को वस्त्र के साथ जोड़ते हैं। Unfortunately, holiness doesn't get connected with any of these things. पर दुख की बात है कि इन सब बातों के साथ पवित्रता के साथ कोई संबंध नहीं है। Everybody loves the church, सब कोई कलीसिया से तो प्रेम रखते हैं, but they can't sit together पर वो एक साथ नहीं बैठ सकते because they have difference of opinion क्योंकि उनका राय अलग अलग है about holiness, पवित्रता के विषय पर, about their doctrines. उनके शिक्षा के विषय पर। Now, holy, अभी पवित्रता, the Hebrew word kadash, इसका हिब्रानी शब्द है कदाश, Q-A-D-O-S-H. QADOSH। It doesn't mean sinless. इसका मतलब निष्पाप नहीं है। It means setting aside. इसका मतलब है अलग रखना, Setting aside. अलग रखना। So you are keeping one day, you set it aside for God. तो हम एक दिन अलग रखते हैं परमेश्वर के लिए। I will give you an example of setting aside. तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा अलग रखने का। Now you go to a lab for a medical test. अभी मेडिकल टेस्ट के लिए अगर हम लैब जाते हैं And there is a drum with water, a dispenser, water dispenser, and a tumbler which is kept to drink water. तो वहां पर एक वाटर डिस्पेंसर होता है और उसमें एक टम्बलर होता है पानी पीने के So लिए। anybody want to drink water, तो अगर किसी को पानी पीना है तो they take it from the water dispenser and they drink. उस वाटर डिस्पेंसर से लेकर पानी पी लेते हैं। Now, if a person wants to do urine test, और अगर कोई व्यक्ति यूरिन टेस्ट करना चाहते हैं, now the staff will not say, स्टाफ ऐसे नहीं कहेंगे
take that glass, कि उस ग्लास को लेना there is that water dispenser, that glass, और वाटर डिस्पेंसर में जो ग्लास है उसको लेकर collect urine and come. अपना यूरिन कलेक्ट करके आओ You give it to me, और मुझे दो, then you wash and keep it there. फिर तुम धो के उसको वापस कर दो। I think you all understand this. ऐसा शायद में सबको समझ में आ रहा है। The glass which is set aside for drinking water will not be used to collect urine. जो ग्लास हम पानी पीने के लिए अलग रखे हैं उसको यूरिन कलेक्ट करने के लिए हम नहीं यूज करते। That's all. यही है। Now you understand the very clear difference, setting aside. तो अभी हम अच्छे से समझ पा रहे हैं फर्क अलग रखने में। So what we can set aside? तो क्या हम अलग रख सकते हैं? According to the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार 3 things we can set aside. 3 कार्यों को हम अलग रख सकते हैं। I will tell you one by one first. मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। Number 1. पहली बात है, First, people can be set aside for the work of God. परमेश्वर के सेवकाई के लिए लोगों को अलग रखना है। The priest, there are specific rules for the priest. और याजक जो एक विशेष नियम है याजकों के लिए। Now, there are many things. बहुत सारे बातें हैं। Now, and the reason also is there. और Why? उसके पीछे कारण भी है। A priest cannot be hunchback. एक याजक कुपड़ा नहीं रह सकता। Okay, you know that कुबड़ा। that bending down, that जो that ऐसे रहता hunchback. है उनका पीठ। A priest cannot be hunchback. एक याजक कुबड़ा नहीं रह सकता। A priest cannot be divorced. एक याजक का तलाक नहीं होना है। Now he needs to have a wife who is a virgin. उसको ऐसे स्त्री के साथ विवाह करना है जो कन्या है। Now there is a sect of people in the Jewish community. They are called the Hasidic Jews. एक सेक्ट है यहूदी के कम्युनिटी में और उनका नाम है हसिदिक जूस। Now you see they have curls of hair on the sides. और हम देख पाते हैं कि उनके सिर के कोने में एक कर्ल्स होता है। Now they exclusively has taken certain words of God. और वो विशेष करके परमेश्वर के कुछ वचन को ले लिए हैं। You are not supposed to cut the corner of your hair of the कि head. तुम अपने बालों के कोने को काट नहीं सकते हो। So they have taken it seriously. तो उसको बहुत गंभीर रीति से ले लिए। So they have never cut this sides. तो साइड को वो कभी कट ही नहीं किए Now हैं। that is in rolls that is falling all और sides. उसको रोल करके सब तरफ मुंह में आता है। Now the priests were allowed to wear linen and wool mixed together. याजक को लिनन और वुल दोनों पहनने का अनुमति था। That is mixed, the cloth mixed और together. वो है वो कपड़ा जो लिनन और वुल के साथ मिक्स्ड हो। Now a normal man is not allowed to do that. एक साधारण व्यक्ति वो कर नहीं सकता। Why? क्यों? Because they want to show a difference between both the people. क्योंकि दोनों लोगों के बीच में एक फर्क दिखाना चाहते हैं। A priest is authorized to collect the tithe. याजक नियुक्त किया गया है दशमांश लेने के लिए। Now, so priests are firstly set aside. People are set aside for the work of God. तो याजक या कुछ लोग अलग किए गए हैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। Number 2, what is set aside? दूसरी बात क्या अलग किया गया है? A geographical place is set aside. एक भूगोलिक स्थान अलग किया गया है। It can be a building. ये एक बिल्डिंग हो सकती है। In the Bible, we see a place is set aside for God. बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए एक जगह अलग रखा गया है। It is Mount Zion. और वो है सियोन पर्वत। Psalms 24 verse 3 and 4 if we read. भजन संगीता 24 उसका 3 और 4 जब हम पढ़ते हैं, Yeah. यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। Who may ascend to the mountain of the Lord? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है?
which means a separate place is kept so that belongs to the Lord. इसका मतलब है एक अलग जगह नियुक्त किया गया है ताकि वो परमेश्वर के लिए रखा जाए। The whole earth belongs to the Lord. पूरा संसार परमेश्वर का तो है, But exclusively, God is about to use one particular place. पर विशेष करके परमेश्वर एक निर्धारित स्थान पर वो एक स्थान रखे हैं और उसको इस्तेमाल करेंगे। Now in India there are many mountains. भारत में कई सारे पर्वत हैं We have a very high mountain which is called Mount Everest. और एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। It all belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का ही है, But Mount Zion is exclusively set aside for his work. पर सियोन पर्वत विशेष करके उनके काम के लिए चुना गया है। Now it says, this psalm says, who shall ascend to the mountain? और यहाँ भजन में लिखा है कि कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता A है? man with pure heart and clean hands. जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। Mount of Olives is set aside for God's work. जैतून का पर्वत परमेश्वर के काम के लिए अलग किया गया है। Jesus ascended from Mount of Olives. यीशु मसीह जैतून के पर्वत से ऊपर गए And Jesus will come back to Mount of Olives. और यीशु मसीह नीचे जब आएंगे तब जैतून के पर्वत में ही पैर रखेंगे। Mount Moriah, मोरिया पर्वत, Mount Zion, सियोन पर्वत and Mount Golgotha, और गोलगोता पर्वत, all are the same mountains. सारे पर्वत एक ही हैं। Now this place is exclusively set aside, so it is called holy. ये पर्वत विशेष करके अलग किया गया है तो इसलिए पवित्र माना जाता है। So don't link holy and sinless together. तो निष्पाप और पवित्रता को हम लिंक ना करें। Holy and sinless. Holy is set apart. पवित्रता का मतलब है अलग किया गया, The place is set apart. वो जगह अलग किया गया है। Now you should not understand that place is holy. Holy means sinless. You should not understand like आपको that. ऐसा नहीं समझना है कि अलग, अगर वो अलग किया गया है तो वो निष्पाप है, ऐसा नहीं है। So what I'm saying, are you all understanding? तो क्या मैं बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? Thank you, thank you. Now the third thing which has to be set aside, तो तीसरी बात जो अलग हमें करना है, time can be set aside for God. समय को हम परमेश्वर के लिए अलग कर सकते हैं। So now Passover is a time which is set aside for God. तो फसह का पर्व एक समय है जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। How many days Passover should be celebrated? कितना दिन हमें फसह का पर्व मनाना है? 1 week. एक हफ्ता। So what is it called? तो उसको क्या कहते हैं? Shabbat. शबात। When is Shabbat? कब शबात है? Monday is Shabbat. मंडे शबात है, Tuesday is Shabbat. ट्यूसडे शबात है, Wednesday is Shabbat. वेडनेसडे शबात है, Thursday is Shabbat. थर्सडे शबात है, Friday is Shabbat. फ्राइडे शबात है, And Saturday is Shabbat. सैटरडे शबात है। 1 week. एक हफ्ता Passover. फसह का पर्व। So if you link continuously Shabbat as Saturday, then the whole theory goes for a toss when we talk about other Shabbats. तो जब हम ऐसे लिंक करते हैं कि शबात केवल सैटरडे है तो बाकी के शबात और इस शबात के साथ कॉन्सेप्ट मैच नहीं होगा। I am setting this time aside. मैं इस समय को अलग कर रहा हूँ, I am sitting down. मैं बैठ रहा हूँ। Why I am sitting down? क्यों मैं बैठ रहा हूँ? For God to do His work inside me. ताकि परमेश्वर मेरे अंदर काम कर पाए। For God to do work inside me, परमेश्वर को मेरे अंदर काम करने के लिए I am sitting down. मैं बैठ रहा हूँ। Now, unfortunately, people don't understand this. पर दुख की बात है ये है कि कई लोग इसको समझ नहीं पाते। People who have not sat down for one Shabbat also. और ऐसे लोग जो एक भी शबात के लिए नहीं बैठे हैं, They keep arguing which day we have to do the Shabbat. वो ऐसे वाद विवाद करते हैं कि कौन से दिन में हमें शबात मनाना है। So it is my humble request to you today. तो ये मेरा नम्र विनती है आपके लिए, Don't go to the legalistic side of this. कि हम नियमों या लीगलिस्टिक साइड में ना जाएं। Now, from our birth, we have been come into a particular system. तो जन्म से लेकर हम एक सिस्टम में आ रहे हैं। Sunday, संडे I go to church. मैं चर्च जाऊंगा,
2 hours service. 2 घंटा सर्विस, Bas, finished. Over. बस Work is काम over. खत्म, मेरा काम खत्म है। Now we can do anything. अभी जो मन चाहे हम कर सकते हैं। Now this thought it has somehow come into us. ये सोच कहीं से आ चुका है And every day we have been taught और रोज हमें ये सिखाया जाता है, early morning, सुबह को read the Bible, बाइबल पढ़ो, pray. प्रार्थना करो। Okay. ठीक है, Now everybody takes the Bible in hurry. सब जल्दबाजी में बाइबल लेते हैं। Okay. Take something. चलो Yeah. चलो ले लो। Now read something. कुछ पढ़ लो। God take care of me, bless me, protect me. I am going out, I am coming in. That's all finished. In Jesus' name we pray. Amen. प्रभु मेरा रक्षा करे, आज के दिन आप देखभाल कीजिए, मैं बाहर जाऊंगा, अंदर आऊंगा, आप सुरक्षा दे। आमीन। Over. Daily work is over. बस रोज का काम खत्म हो चुका। Now I can do whatever I want. अभी जो मन चाहे मैं कर सकता हूँ। No. This is never this is not the way God told. नहीं, इस प्रकार प्रभु ने कभी नहीं कहा है। Unfortunately, it all has set in our mind. पर ये दुख की बात है कि ये ऐसा सोच हमारे मन में बैठ गया है। God says, sit down. परमेश्वर कहते हैं बैठो, Sit down. बैठो, You sit. बैठो। Now, I will give you one example so that you understand. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा ताकि आप समझ पाएंगे। When you are 3 or 4 years old, you are being put in LKG or you call it UKG, kindergarten school. जब हम 3 या 4 साल के होते तब हमें किंडरगार्टन स्कूल में डालते हैं। So first standard, second standard. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, Who should study? किसको पढ़ना है? You and me should study. आपको और हमको ही पढ़ना है। You and me study, आप और हम जब पढ़ेंगे we pass. हम पास हो जाएंगे, We go to the next standard. हम अगले क्लास में जाएंगे। Like that, you keep studying. ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे। That is preparation for this world. और ये इस संसार के लिए एक तैयारी है। You go to college. हम कॉलेज जाते हैं। Who studies? कौन पढ़ता है? You and me should study. आप और हमको ही पढ़ना है। Nobody else will study for you. कोई भी आपके लिए नहीं पढ़ेंगे। We only have to do it. हमें खुद ही सब कुछ करना होगा। We studied. हम पढ़े हैं, We got the degree. हम डिग्री पाए हैं। So now today you are a doctor, you're an engineer, you're a teacher, you're an IT professional, whichever job you have done. तो going. इस प्रकार आप आज डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर या आईटी प्रोफेशनल, जो भी काम आप कर रहे हैं। Now, I'm not saying God did not help you in your studies. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु ने आपको पढ़ाई में सहायता नहीं किया। He helped. उन्होंने सहायता किया है, But we also have to study, na? पर हमें भी हमारी तरफ से प्रयास करना है। You cannot say totally I won't open the book and finally I will become a scholar. Means that's not possible. तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं बुक ही नहीं खोलूंगा पर विद्वान बन जाऊंगा, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। So now we that is preparation for us for this world. तो ये इस संसार के लिए एक तैयारी है। There needs to be a preparation for us to go to the next world. और आने वाले संसार में जाने के लिए भी हमें तैयार करना होगा। Yes or no? हाँ या ना? Yes? Okay. There needs to be a preparation. एक तैयारी चाहिए हमें। So who should do the work? तो किसको काम करना है? This is where we have to understand correctly. यहाँ ही हमें अच्छे से समझना होगा। We need not do the work. हमें काम करने की जरूरत नहीं है। God will do the work. परमेश्वर काम करेंगे। For this world, who did the work? इस संसार के लिए किसने काम किया? We did the work. हमने काम किया। We studied. हम पढ़े हैं। God helped. That प्रभु is ने there. सहायता किया। But for the next world, पर आने वाले संसार में can we become holy on ourselves? क्या हम हमारे प्रयासों से पवित्र बन सकते हैं? No. नहीं। So God says, तो प्रभु कहते हैं I will make you holy. मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा। So what you should तो do? तुम्हें क्या करना है? Sit down. बैठो, Sit down. बैठो। If it is money, अगर ये पैसा है, God says 1/10 you have to give. प्रभु कहते हैं दशमांश मुझे देना। 1/10. 10%। If it is time, अगर समय है, 1/7 you have to give. 7 में से 1 भाग तुम्हें देना है। It's not 1/10. 10% नहीं, It's 1/7.
7 दिनों में से एक भाग, 7 days. 7 दिन. Now, see, I have intended to clear all your doubts with regard to Shabbat. So after this message, you won't have what to do, how to do, how many hours to give. You won't have any confusion. देखिए, मैं निर्णय ले लिया हूं कि शबात के विषय पर हर एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा. तो इस टीचिंग के बाद आपको प्रश्न नहीं आएगा कि कैसे हम करें, क्या करें, कितना घंटा देना है. You have to offer one full day to God in a week. आपको एक पूरा दिन, हफ्ते में एक पूरा दिन आपको परमेश्वर के लिए अलग रखना ही होगा. Now, your obligation doesn't get over by 2 hours. You go to church with a beautiful sari and beautiful suit and show it to everybody and come back. It doesn't get over. एक सुंदर साड़ी या एक अच्छा सूट पहनकर सबको दिखा के 2 घंटे कलीसिया में बैठकर आने से आपका कर्तव्य खत्म नहीं होता. In Israel, इसराइल में some places, कुछ जगहों में suddenly it closes down on Friday afternoon, evening. अचानक फ्राइडे इवनिंग को सब कुछ बंद हो जाता है. Not even one soul is walking in the road. एक प्राणी भी उस रोड में नहीं चलता. Now we think, is it some World War situation or totally everything is deserted? Anybody lived before here? And you will get such a shock. और ऐसा सुनसान हो जाता है कि हम घूम के जब देखेंगे, अरे क्या यहाँ पर कोई प्राणी है या कुछ विश्व युद्ध होने वाला है, क्यों, क्या कोई नहीं है यहाँ पर, एकदम अचंभा हो जाएंगे हम. But when Shabbat is over, पर जब शबात खत्म हो जाती है, within that few minutes, a 30 minutes time gap, और 30 मिनट के टाइम गैप में the entire place is fully crowded now. पूरा वो जगह भर जाएगा भीड़ के साथ. What is that they are saying? वो क्या कह रहे हैं? We honor the Sabbath day. हम शबात दिन को आदर करते हैं. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. The Bible says, do not work on that day. बाइबल कहती है कि उस दिन तुम काम मत करो. Now the question comes, what's work? अभी प्रश्न आती है कि काम क्या है? In the New Testament, नए नियम में it refers that you check in your Bible, reference Bibles, you will get a lot of information. आप अपने रेफरेंस बाइबल में चेक अगर करेंगे तो बहुत सारा जानकारी They मिलेगा. have something called Sabbath days walk. और शबात दिन का चलने का भी नियम है. And the Jewish people have. और यहूदी लोगों का है ये. You have to take only this much steps. आप सिर्फ इतना कदमों ही ले सकते हैं. If you take one step more, इससे ज्यादा अगर एक भी कदम आप ले लेंगे, then you are bypassing the Shabbat. तो आप शबात का नियम पालन नहीं कर रहे हैं. So some Jews, what they do? तो कुछ यहूदी क्या करते हैं? I am not supposed to walk that much. मुझे उतना दूर नहीं चलना है. I can't take so much steps. मैं उतना कदम नहीं ले सकता. So let me go by car. तो मैं कार में चला जाता हूँ. So they have alternate. They are finding alternate. तो इस प्रकार वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if we clearly understand the purpose why God is telling this, अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे परमेश्वर क्यों ये बता रहे हैं, it's very simple for us to follow. हमें बहुत आसान होगा समझने में. But if you try to find out what is work I should do or not, तो अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि काम क्या है कि और क्या नहीं करना है हमें, then you'll go mad. You'll go crazy like. हम पागल हो जाएंगे. Which is work? काम क्या है? Now one person defines work. कुछ लोग काम का ये अर्थ देते हैं, If you light a candle, अगर तुम एक मोमबत्ती जलाते हो then it's work. तो वो काम है. So how to stay in dark now? तो कैसे हम अंधकार में रहें? So now this was those times. ये उस समय में था. Afterwards what happened? उसके बाद क्या हुआ? The equivalent is light. और इसका इक्विवेलेंट है लाइट. Now we are not lighting candles in our house. अभी हम मोमबत्तियां नहीं जलाते हैं. We put the switch and the light comes on. हम स्विच ऑन करते हैं और लाइट आ जाती है. So now they say, तो अभी वो कहते हैं don't on the switch because it becomes work. तो स्विच ऑन मत करो क्योंकि वो काम बन जाता है. So the people who believe
I won't on the switch. They are called Orthodox Jews. जो लोग विश्वास ऐसे करते हैं कि वो स्विच ऑन नहीं करेंगे, उस प्रकार के यहूदियों को ऑर्थोडॉक्स ज्यूस कहा जाता है। But for the people who say, chalega, oh switch to ye, it is not a big thing. अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चलेगा, स्विच तो बड़ी बात नहीं है, They are called the reformers. उनको रिफॉर्मर्स कहते हैं। Like this, both have their set of arguments. ऐसे दोनों लोगों का अपने तरफ का एक विवाद है। The best thing what you and me can do, सबसे श्रेष्ठ बात जो आप और हम कर सकते हैं, be out of all these contradictions. इन सब बातों से हम दूर रहें। Work, no work, what to do, not to do, just leave all those things. काम करो, काम मत करो, क्या करे क्या ना करे, इसको हम अलग रखेंगे। Because we have one word definition of Shabbat which is fixed in our mind. क्योंकि हमारा एक अर्थ है शबात का जो हमारे मन में बैठ गया है Sit down. कि बैठो। How many of you want God to do the work inside you? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके अंदर काम करें? Praise the Lord. Praise the Lord. Now we all want God to do work inside us. हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर काम करें, So we sit down. तो हम बैठेंगे। What about others? They are not following it correctly. बाकी लोगों के बारे में क्या, वो ठीक से इसका पालन नहीं करते? The answer is in Colossians chapter 2 verse 16. इसका उत्तर कुलूसियों 2 उसका 16 में है। Colossians chapter 2 verse 16. कुलूसियों 2 उसका 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नया चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, Don't judge anybody basis Shabbat. और लोगों का न्याय मत करें शबात के विषय पर। How he is speaking to God, how God is dealing with him, we don't know. कैसे वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, कैसे प्रभु उनके साथ डील कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते। How you are walking and coming? कैसे आप चल के आ रहे हैं? You are telling you are in Shabbat and but still you have come to my house. आप कह रहे हैं कि आप शबात में, फिर भी आप चल के आए हैं। The Bible says you don't judge that. बाइबल कहती है इसका न्याय मत करो। Everybody will take care of themselves. सब अपना अपना देख लेंगे। It is between them and God. उनके और परमेश्वर के बीच में है ये। We give हम देते हैं 1/7 of the time, total time which we have. और टोटल टाइम में 1/7, 7 भाग में 1 भाग हम देते हैं प्रभु के लिए। Now you have to understand the seriousness of this matter. इस बात का गंभीरता हमें समझना होगा। It is not a choice where you give, you don't give. It is not a choice. ये कोई चुनाव नहीं है कि आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ऐसा नहीं है। The verse which I am going to read now, जो पद मैं अभी आपके लिए पढ़ने वाला हूँ, really it is going to hit hard. ये जरूर बहुत गहरा हमें एक मार देगा। Turn your Bible now, everybody concentrate clearly. सब यहाँ पर ध्यान दीजिए। Hebrews chapter 4, इब्रानियों 4 अध्याय verse 1, 2, 3, everybody open first. 1, 2, 3 सब खोल लीजिए पहले। Hebrews chapter 4, इब्रानी 4 verse 1, 2, 3. उसका 1, 2 और 3 पद। Yes. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने गए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, I will put in simple terms that we all understand this correctly. मैं आसान शब्दों में बताऊंगा ताकि हम सब इस वचन को समझ पाएं। It is written here, यहाँ पर ऐसा लिखा है,
we don't give Shabbat time to God, अगर हम शब्द के समय को ठीक से प्रभु को नहीं देते we are not entering eternal rest. तो हम उस अनंत विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। Or if I have to put it more simplified, अगर मुझे और भी आसान शब्दों में कहना है तो you don't follow Shabbat, you don't go to heaven. शबात पालन नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। For how many of you this is shocking? कितने लोगों के लिए ये धक्का मारा था। You don't give Shabbat, you don't follow Shabbat, शबात पालन नहीं करोगे तो you don't go to heaven. स्वर्ग नहीं जाओगे। I will repeat this verse once again. मैं इस वचन को फिर से बता रहा हूं। Since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found fallen short in this area. None of us should fall short of following Shabbat. हम में से किसी Wait. Let me complete. They understand. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Now we who have entered the rest, just as God has said, I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. God says, they shall never enter my rest. परमेश्वर कहते हैं वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। Now the heaven is called the eternal rest. स्वर्ग को ही हम अनंत विश्राम कहते हैं। Here, one day in 7 days is the rest, is the Shabbat which we have to follow. यहाँ पर 7 दिन में एक दिन जो विश्राम है ये हमें पालन करना है। Now here you don't give Shabbat. यहाँ पर हम शबात नहीं देते। God says, प्रभु कहते हैं I am telling an oath in my anger, they shall never enter that rest. मैं अपने क्रोध में शपथ खाता हूँ कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। What is the reason? इसका कारण क्या है? God says, you don't trust me that much. प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे इतना भी विश्वास नहीं करते हो। You're not trusting me enough that I will take care of you. तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो कि मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। Because some people think that if they go and do the work on that day, they can earn some income. क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उस दिन में जाकर वो काम करेंगे तो और ज्यादा कमा सकते हैं। Now God says, प्रभु कहते हैं you don't want to give me one day. तुम मुझे एक दिन देना नहीं चाहते। You don't want to sit down on that one day. तुम वो एक दिन बैठना नहीं चाहते हो। Because you don't want to sit on that one day, क्योंकि तुम उस एक दिन बैठना नहीं चाहते हो। I'm not going to give you rest. मैं तुम्हें मेरा विश्राम में प्रवेश करने नहीं दूंगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we giving time for God to do work inside us. हम जब समय देते हैं प्रभु को कि वो हमारे अंदर काम करें, Is very important. वो समय बहुत मुख्य है। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। I have brought a plot of ground, one ground, 2,400 square feet I have bought. अगर मैं एक प्लॉट खरीदा हूँ 2,500 स्क्वायर फीट का, 400 स्क्वायर फीट का। Now I have put a compound wall. मैं अगर एक कॉम्पाउंड वॉल डाल देता हूँ, Beautiful gate. बहुत सुंदर द्वार, I have locked it. सब कुछ ताला डाल के बंद कर दिया है। In the middle of the plot, उस प्लॉट के बीच में I want a beautiful 2-bedroom house. मैं एक सुंदर 2 बेडरूम का घर चाहता हूँ। Okay, so I'm calling a building contractor तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता हूँ and I tell him, और उनसे कहता हूँ I want a beautiful 2-bedroom house in the middle of this 2,400 square feet. मुझे एक सुंदर 2 बेडरूम का घर चाहिए उस 2,400 स्क्वायर फीट के बीच में। And everything is finalized. Yeah, the builder says, yes, I will make it ready. और सब कुछ फाइनल हो चुका है और वो बिल्डर भी कह देते हैं ठीक है मैं तैयार कर दूंगा। Everything is agreed. सब कुछ वो मान गए। Now I have locked the key and I have gone home. मैं ताला डाल के घर चला गया। Now the contractor, building engineer comes to see, to start the work inside. और अभी बिल्डिंग इंजीनियर आते हैं काम शुरू करने के लिए। But the gate is locked.
पर गेट ताला लगा है। Now he is calling, वो बुलाते हैं, Sir, open the gate. सर गेट खोलिए, Then only I can work तभी inside. मैं अंदर काम शुरू कर सकता हूँ। I say, no, next week we'll see. मैं कहता हूँ नहीं, अगला हफ्ता देख लेंगे। Next week he calls. अगले हफ्ते बुलाते हैं, I want to do the work inside. मुझे अभी काम शुरू करना है अंदर। Now we say, हम कहते हैं, I want the house beautiful. मैं चाहता हूँ कि घर सुंदर रहे। Now he says, वो कहते हैं, Sir, that is what I am also saying. अरे वही मैं भी कह रहा हूँ, Give the key now, so I will start the work. पहले चाबी दीजिए, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। Yeah, I'll give you next week. हाँ, अगले हफ्ते दूंगा मैं। Like this, years have gone. ऐसे बहुत सारे वर्ष बीत गए, 10 years, 10 वर्ष, 20 years. 20 वर्ष। Now you ask, where is the house? I told you to build the house. और अभी आप अचानक पूछते हैं, घर कहाँ है? मैंने आपसे बोला था घर बनाने के लिए। Now that man says, you didn't give the key to me one day also. तो वो व्यक्ति कहेंगे कि एक दिन भी आप मुझे वो उसका चाबी नहीं दिए हैं। We accept Jesus Christ as our Savior. हम यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता मान लिए We हैं, have taken baptism. बपतिस्मा ले चुके हैं। Next, what we ask? अगला हम क्या कहते God, I want to come to heaven. प्रभु मैं स्वर्ग आना चाहता हूँ। God says, प्रभु कहते हैं, sit down. बैठो, I'll start the work. मैं काम शुरू करूंगा। Never, कभी नहीं, never, please sit. कभी बैठते नहीं। God, I have to come to heaven. प्रभु मुझे स्वर्ग आना है। अरे, that is what I'm telling yaar. अरे ये मैं भी चाहता हूँ। Sit down yaar. पहले बैठो भाई। No, I won't sit. नहीं, मैं नहीं बैठू, I am busy. मैं व्यस्त हूँ, I have so much of work. इतना काम पड़ा है। What is the greatest work? क्या सबसे बड़ा काम है? Netflix, नेटफ्लिक्स है, Amazon, अमेजोन है, cell phone, सेल फोन है, friends. दोस्त हैं, So many work, so much of work I बहुत have. सारा काम है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, that last day is coming वो अंत का दिन आ रहा है and you say, I want to come to heaven. और आप कहते हैं कि आप स्वर्ग आना चाहते हैं And God says, when did you give me the key? और प्रभु पूछेंगे कि तुमने चाबी कब दिया मुझे? You have not sat down one day also. एक दिन भी नहीं बैठे हो मेरे साथ। Now inside holiness he has to do. अंदर पवित्रता का काम उनको ही करना होगा। We don't trust God enough. हम परमेश्वर पर उतना भरोसा नहीं रखते। You think if you sit one day quiet in the presence of God, हम ऐसे सोचते हैं कि एक दिन शांति रीति से अगर परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन बैठे then it is going to cause you a loss. तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला You है। think on that day you could have met the friends? आप शायद सोच सकते हैं कि उस समय मैं किसी दोस्त से On मिलता that day you could have done some office work? या उस दिन मैं किसी ऑफिस का काम खत्म On करता that day you could have completed some housework? या उस दिन घर का काम खत्म करता। And accompanied with all this, और इन सब बातों के साथ साथ the psychological problem. हमारा मानसिकता, हमारा सोच का समस्या। I went to church. कलीसिया गया मैं, I sat there 2 hours. 2 घंटा बैठा, That also you went late. वो भी हम देर से गए And yeah, I sat there for 2 hours. और 2 घंटा बैठा, I have finished my duty. मैंने मेरा कर्तव्य खत्म कर दिया। Where God told you need to have a service of 2 hours? कहाँ प्रभु ने बताया कि 2 घंटे का आराधना रखो? Nowhere. कहीं नहीं। And going there, और वहां जाकर I didn't like the worship today. Na? आज का आराधना अच्छा नहीं था। So this worship is actually this song is not good ये गाना अच्छा नहीं है and music is not good. और आई मीन म्यूजिक बेसुरा है। You know that girl which came to do this special song. और वो लड़की जो आई थी स्पेशल सॉन्ग के What लिए, dress she is wearing, yeah? क्या कपड़ा पहन रही थी? Such a grand dress she has come. इतना ग्रैंड कपड़ा पहनने की क्या जरूरत? See, message we didn't understand anything, na? मैसेज कुछ भी समझ में Total नहीं आया। confusion. We didn't पूरा understand. कंफ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आया। Why are you going to church? क्यों आप कलीसिया जाते हैं? To give your comments on all this? इन सब बातों में कमेंट देने के लिए। For God to do work inside you. हम इसलिए जाते कि प्रभु हमारे अंदर काम कर पाए। Always we think, what I get? After हमेशा- going to church, God, you will bless me. He is doing something inside you. Keep quiet. हम हमेशा ऐसे सोचते कि हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, प्रभु क्या आप मुझे आशीष देंगे? चुप रहें। You go to the doctor. डॉक्टर के पास जाते हैं,
You have to do a bypass surgery. बाईपास सर्जरी करना है तो That time, side by side, you will be doing some work. उस समय साइड में आप कुछ काम करते रहेंगे क्या? Anesthesia is given. अनस्थीसिया दिया जाता है। Doctor says, you keep quiet first. डॉक्टर कहते हैं पहले चुप रहो। Doctor, which knife you are going to use? डॉक्टर कौन सा चाकू आप यूज करेंगे? And if suppose the blood loss is too much, you have spare bottle blood? अगर बहुत लहू बह जाता है तो आपके पास स्पेयर ब्लड है? I am B positive. मैं बी पॉजिटिव हूँ। Don't mix up, because you have to be very clear which आप मिक्स blood ना group. करें, ठीक है? I am B positive. अब मैं बी पॉजिटिव, I don't know whether you are positive or not. और मुझे मालूम नहीं कि क्या आप पॉजिटिव है या नहीं। Now doctor is not going to answer all this nonsense. डॉक्टर ये सब बेकार प्रश्न का उत्तर नहीं देने वाले। Doctor says, डॉक्टर कहते हैं चुप, चुप, silent, चुप रहो, sit down. बैठो। That is what God is telling today. ये ही प्रभु आज भी आपको कह रहे You हैं। need not worry too much, yeah. बहुत आपको चिंता करने की जरूरत No, नहीं है। tomorrow I have to pay the loan. I have to do मुझे some लोन studies. भरना है, I पढ़ाई am looking करना for a है। suitable match. अरे बस, मेरे लिए मैं एक रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, बस चुप, चुप, sit. बैठो। God says, I know what to do. प्रभु कहते हैं मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। What I should do? मुझे क्या करना है? I am going to tell you that. मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। As of now, you have to understand till this level. अब के लिए आपको इस हद तक जानना होगा। Hebrews chapter 4. Now everybody knows the word Hebrews 4:12. सब इब्रानी 4 उसका 12 तो जानते हैं, In which context it is told, nobody knows. पर किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है ये कोई नहीं जानता। Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानी 4 उसका 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। The word of God is powerful. It is like a double-edged sword. It goes into bones, marrows, everything. We know that very well. Many times. हम इस वचन को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार के समान है, बहुत सामर्थी है, हमारे नस में, हमारे प्राण में सब पहुंचता है। In which context? पर किस कॉन्टेक्स्ट में बताए हैं? You have to go 2 verses before. आपको 2 पद उसके पहले जाना होगा। 9, 10, verse 9 and 10. 9 और 10 पद। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उनसे भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। For whom God's word is powerful? किसके लिए परमेश्वर का वचन सामर्थी है? Whom? किसके लिए? For the one who sits in Shabbat. जो व्यक्ति शबात में बैठता है उसके लिए। We know God's word is powerful. हम जानते हैं वचन सामर्थी है, but not like anybody says that. पर ऐसा नहीं कि कोई भी बोल सकते हैं। You have to sit in Shabbat. आपको शबात में बैठना You होगा। meditate that word of God 1 full day. एक पूरा दिन आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें, Then you say. उसके बाद कहें। Then the word of God becomes powerful. उस समय परमेश्वर का वचन सामर्थी बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Luke chapter 23 verse 54 says. लूक का 23 उसका 54 कहता है, It talks about the Shabbat preparation. वो शबात की तैयारी के बारे में कहता है। Okay, fine. Now you please take Luke 14, please. Luke 14. लूक 14 हम लेंगे। Now we are going to understand now what are the do's and don'ts, like what you can do during Shabbat. और अभी हम समझने वाले हैं कि शब्द के दिन में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। Now we all are clear that Shabbat means sit down. और अभी हम सब स्पष्ट से जानते हैं कि शब्द का मतलब है बैठना। Shabbat is not equivalent to Saturday. It can be any day. शबात केवल सैटरडे नहीं है, कोई भी दिन हो सकता है। And you sit down for the purpose because God has to do work inside us. और हम इसलिए बैठते हैं ताकि प्रभु हमारे अंदर काम करे।
what we can do on Shabbat. हम शब्द के दिन में क्या कर सकते हैं? Luke chapter 14 verse 1 to 5. लूक का 14 उसका 1 से 5। Yes. फिर वो शब्द के दिन फरिसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरिसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने दिया। और उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। Now you see, here from this passage we understand what we can do on a Shabbat. इस भाग से हम समझ पाते हैं कि शब्द के दिन में हम क्या कर सकते हैं। Number 1. पहला बात, First verse says, on Shabbat Jesus went to eat. शब्द के दिन में यीशु मसीह खाने के लिए गए। So what we can do? तो हम क्या कर सकते हैं? On Shabbat we can eat. शब्द के दिन में हम खा सकते हैं। Oh, so now everybody is happy. अभी सब खुश हो चुके हैं। अरे खाना तो हो गया यार. खाना तो हो गया। Now nobody says I have to fast on Shabbat. No, so this is a great blessing. Okay. अच्छा हुआ कि किसी ने ऐसा नहीं बोला कि शब्द के दिन में उपवास रहो। ये एक बहुत बड़ी आशीष है कि आप Number खा सकते हैं। 2. अभी दूसरा है, Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee. यीशु मसीह एक फरीसी के घर गए थे खाने के लिए। So number 2. दूसरा बात है, On Shabbat, शब्द के दिन में you can go to somebody's house. तुम किसी के घर जा सकते हो। Very simple. बहुत आसान है। Why get confused? क्यों हमें कंफ्यूज होना है? Now don't be calculating the steps. How many steps I can take? Now that is legalistic. और आप स्टेप्स कैलकुलेट ना करें, ये तो बहुत लीगलिस्टिक है। Now, third thing, तीसरा बात, Jesus is healing somebody. यीशु मसीह किसी को चंगा कर रहे हैं। So number 3, what we can do on Shabbat? तीसरी बात, हम शब्बात में क्या कर सकते हैं? You can heal. हम चंगा कर सकते हैं। You can pray for somebody. किसी के लिए प्रार्थना कर सकते Miracle can happen for them. हैं। चमत्कार हो सकता है उनके लिए। No issues. It is all right. कोई समस्या नहीं, ये सब ठीक है। Luke chapter 13 verse 10 to 17 gives us more light. लूक का 13 उसका 10 से 17 और ज्यादा हमें जानकारी देती है। Now I'll request Sister Sapna to read this scripture portion. हम चाहते हैं सिस्टर सपना इस स्क्रिप्चर पोर्शन को पढ़ें। It is Luke chapter 13 लूक का 13 verse 10 to 17. 10 से 17। Yes. के दिन वो आराधनालय में उपदेश कर रहा था। देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार ऋषिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर चंगे हो, पर शब्द के दिन में नहीं। परंतु ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? और क्या उचित न था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उस महिमा के कामों से वो करता था आनंदित हुई। Thank you, sister. Now, this scripture portion talks about what all Jesus did more.
और ये वचन का भाग और जानकारी देता है कि यीशु ने क्या क्या किया। So number 4, Jesus was teaching on Shabbat. तो चौथा है कि यीशु मसीह शब्द के दिन में सिखा रहे थे। So we can teach on Shabbat. तो शब्द के दिन में हम सिखा सकते हैं। And he is referring to giving water to animals. और वो इस बात को जानवरों को पानी देने के साथ तुलना करते हैं। So we can give food to other people. तो हम दूसरों को Next point. नेक्स्ट पॉइंट है, हम दूसरों को खाना खिला सकते हैं। Understand something. Healing is God's work. हमें ये समझना है कि चंगाई परमेश्वर का काम है। You and me are called to do God's work. आप और हम परमेश्वर के काम करने के लिए बुलाए गए हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now don't go, I'm repeating often, so don't feel bad about it. Now don't go into the legalistic side. Why I'm saying this is sometimes we tend to go. और हम कई बार लीगलिस्टिक साइड में जाने की कोशिश करते, तो बहुत लीगलिस्टिक साइड में हम ना जाएं। I won't start the car, I won't on the light, I won't dress up, I won't take bath, nothing like that. और ऐसा नहीं है कि मैं कार स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं और लाइट ऑन नहीं करूंगा, नहीं नहाऊंगा, ऐसा नहीं है। Mark chapter 2 verse 27. मरकुस 2 उसका 27। Then he said to them, the Shabbat was made for man, not man for the Shabbat. फिर उन्होंने उनसे कहा कि मनुष्य शबात के लिए नहीं, पर शबात मनुष्य के लिए बनाया गया है। So it is a beautiful time which we are looking forward to participate. तो ये एक सुंदर समय है जिसका इंतजार में हम हैं ताकि हम उसमें भाग लें। Now I'm going to ask you a question. मैं अभी एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। If you know the answer, it is very simple question. बहुत आसान प्रश्न है। And I'm going to ask you, read the verse. I'm reading the verse, and after that you have to say what was happening. मैं उस पद को पढ़ूंगा और उसके बाद आप बोलेंगे कि क्या हो रहा था वहां पर। Matthew chapter 5 verse 1 and 2. मत्ती 5 उसका 1 और 2। After I ask the question, you please raise the hands. और प्रश्न पूछने के बाद अपना हाथ उठाएं। Yes. वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। The question is, प्रश्न ये है, what was Jesus doing? यीशु क्या कर रहे थे? Who can answer? Raise your hand. कौन उत्तर दे सकते हैं? हाथ उठाइए। Yes, Sister Sapna, I can see your hands. I want to see. Take somebody else. I know you know the answer. What was it? Who else? One minute. Wait. Manoj Lakra, old student. Yeah. Here, Mr. Nanda. Yes, Mr. Nanda. Sir, you can unmute. Yes, sir. Jesus was teaching. I want the right word. Thank you for your answer. Jesus was teaching. I want the right word. Thank you so much, sir. Mr. Brother Philip. He was preaching. Okay. Thank you so much. He was preaching. Yeah. Chahat Kumar. पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, पहाड़ी उपदेश। Oh, he is doing the Beatitudes, mountain में preaching. Okay. Thank you so much, Chahat Kumar. Pastor Ishak Naik. Opened his mouth. He opened his mouth. Okay. See, I have already given you. Thank you so much, Pastor. I have already given you the answer. You are not connecting my message with the context what you read. आप में संदेश के साथ कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सर मैं बताऊंगी आदि लक्ष्मी। हाँ, आदि लक्ष्मी, यस। हाँ सर, प्रभु यीशु मसीह सब बात मना रहे थे। सब शबात मना रहे थे। शबात, yeah, give a big hand and praise the Lord. Yes. और ताली बजाएं। अरे, to get this, what did I say? मैंने क्या कहा? Why you are not reading clearly? क्यों हम स्पष्ट से नहीं पढ़ पा रहे हैं? The key word is there. यहाँ पर मुख्य शब्द है। When Jesus saw the crowd, he went up on the mountain and जब यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो क्या है?
बैठ गया, बैठ गया. बैठ गया. Say loudly, बैठ गया. ऊंची आवाज में कहिए, बैठ गया, बैठ गया. बैठ गया. What is sitting down? बैठना क्या है? Shabbat. शबात. Jesus was on Shabbat. यीशु मसीह शबात में थे. On Shabbat you can teach. शबात में हम सिखा सकते हैं. So Jesus was celebrating Shabbat. तो यीशु मसीह शबात को मना रहे थे. Glory be. How many of you understood? कितने लोग समझ पा रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Praise Jesus. I don't know. Now, what we can do on Shabbat? हम क्या कर सकते हैं शबात में? You can be with other like-minded people. एक मन के लोग के साथ, एक चित्त के लोग के साथ हम रह सकते हैं. Like-minded people. एक मन के लोग के साथ. I come and meet you as a family. मैं आकर परिवार के रूप में आपसे मिलता हूँ. I say, come, let us all sit down and pray. मैं कहूँगा, अगर मैं कहता हूँ कि चलो हम सब बैठकर प्रार्थना करेंगे. How many of you wanted an experience of Shabbat in your house? कितने लोग शबात का अनुभव चाहते हैं आपके घर में? Hallelujah. हालेलुया. Plan something. We will meet together. प्लान करिए, हम एक साथ मिलेंगे. Together sitting in a round एक साथ राउंड में बैठकर and talking word of God. परमेश्वर का वचन बात करेंगे हम. Now some people say that smiling is disturbing the Shabbat. Very serious you have to be. कुछ लोग कहते हैं कि मुस्कुराना शबात को डिस्टर्ब करता है, बहुत सीरियस रहना है. And we keep our face very serious because we are holy. हम हमारे चेहरों को इतना सीरियस रखते हैं क्योंकि हम पवित्र हैं. My goodness. बाप रे बाप. Why, Baba? क्यों भाई? I read an article today. North Korea, this leader is there, no? Kim Jong Jung or somebody. और मैंने पढ़ा था आज एक आर्टिकल कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम यंग जुंग या ऐसे कुछ साउंड आता है उनके नाम से. Now that guy has put a ban on laughing. और उन्होंने एक बैन डाल दिया है हंसने का. My goodness, I don't know. I cannot understand how those people are living there. बाप रे बाप, मुझे समझ में नहीं आता कैसे वहां के लोग रह रहे हैं. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the most beautiful time which we have had in our family. हमारे परिवार में सबसे सुंदर समय. You can ask my daughter, my sons, my mother, my wife, anybody. आप मेरे बेटी से, मेरे बेटों से, माँ से, पत्नी से, किसी से भी पूछ सकते हैं. It's Shabbat. वो है शबात के We समय. sit down in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं. We don't do anything except other than telling, apart from, without telling God. प्रभु को कुछ बताए बिना हम कुछ नहीं करते. If you have to go out, अगर हमें बाहर जाना है, if you have to purchase something, अगर हमें कुछ खरीदना है, any decision we have to take in our family, या कोई भी निर्णय अगर परिवार में हमें लेना है, first we tell God पहले हम प्रभु से बोलते हैं. as a family. परिवार के रूप में We बैठकर take a decision हम निर्णय लेते हैं and ask for God's approval. और प्रभु के अप्रूवल को हम मांगते हैं. God, you tell us what to do. प्रभु आप बताइए कि हम क्या करें. And now sometimes it goes for 5 hours, 6 hours, and finally we somehow complete. कई बार 5 घंटा 6 घंटा हो जाता है और हमें बंद करना पड़ता है. It is a beautiful time. बहुत सुंदर समय है वो. That is the time God works within us. वो ही वो समय है जब प्रभु हमारे अंदर काम करते हैं. So just because I told Jesus went to the mountain और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह पहाड़ में चढ़ के गए and he sat down there, और वहां पर बैठ गए. now don't think you should go to the mountain now. आप ऐसा ना सोचे कि आपको भी पहाड़ चढ़ना है. Now sometimes I am very scared to tell something कई बार मैं कुछ बोलने से डरता हूँ because I don't know how people will take it. क्योंकि पता नहीं कैसे लोग उसको मानेंगे. The meaning is इसका मतलब है walk away from everything what you do और जो भी हम करते उससे हम दूर चले जाएं and you get isolated. और हम एकांत में बैठ जाएं. Be alone.
अकेला रहें हम। On Shabbat, you can be with like-minded people. शबात में एक मन के लोगों के साथ हम रह सकते हैं। And that means you cannot be in a bar on that day. इसका मतलब है हम बार में नहीं रह सकते। I am See, now I am also liking to drink, and they also like to drink. We are like-minded people, so we go to bar. It is not that like-minded. और बाहर जाने के लिए एक मन एक चित ऐसा नहीं रहना है कि मुझे भी अच्छा लगता है दारू पीना, उसे भी अच्छा लगता है, चलो एक साथ जाएं, ऐसे नहीं। They want to sit down for God to work in वो their hearts. इसलिए बैठते हैं ताकि प्रभु, वो चाहते हैं कि प्रभु उनके हृदय में काम करे। I want to sit down for God to work inside me. मैं भी चाहता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर काम करें, So we sit together. इसलिए एक साथ बैठ रहे हैं। So it can be mama, तो ये मम्मा हो सकता है, papa, पापा हो सकते Grandpa, हैं, ग्रैंडपा हो सकते grandma, हैं, दादी हो सकती है, son, बेटा हो सकता है, daughter, बेटी हो सकती है। and other like-minded people. You sit together. एक मन के लोगों के साथ आप बैठ सकते हैं। Now we can teach in that time. उस समय हम सिखा सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now for me, I will tell you how it is. मेरे लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है। On Sundays, संडे के समय I preach, मैं प्रचार करता हूँ, I teach. मैं सिखाता हूँ। On other days when I have classes, बाकी के दिन में जब मेरा क्लासेस है, I teach. मैं सिखाता हूँ। I pray for others. मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ। When I sit in Shabbat, जब मैं शबात के लिए बैठता हूँ, Jesus teaches me. यीशु मुझे सिखाएंगे, Jesus serves me. यीशु मेरी सेवा करेंगे। This difference you should know. ये फर्क हमें जानना होगा। Without knowing this, now there is a lack from my side. मेरी तरफ से एक कमी है। Much of the times when I sit in Shabbat, it is for me to preach to others. For preparing that message, I sit. कई बार शबात में बैठने के समय मैं इसलिए बैठता हूँ ताकि मैं लोगों के लिए प्रचार तैयार करूं, दूसरों के लिए ही है। So I was thinking that Jesus ministering to me is less. So I have to increase that time now. तो मैं ऐसे सोच रहा था कि यीशु मसीह मेरे साथ जो प्रचार करेंगे वो बहुत कम है, वो सेवकाई बहुत कम है, तो मुझे उसके लिए समय और ज्यादा अलग करना होगा। So Shabbat, तो शबात it is not about crowd. ये भीड़ के बारे में नहीं है। It's not like we gather our church, we have 100,000 people coming to our church. No use. और ऐसा नहीं है कि हम लोग 100,000 लोग आते हैं कलीसिया में, ये बड़ी बात नहीं है। We are a handful of people. हम बहुत छोटे से झुंड ही हैं, We sit together पर हम एक साथ बैठते हैं for God to do work inside us. ताकि प्रभु हमारे अंदर काम कर पाए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to Isaiah chapter 56 verse 2. यशाया 56 उसका 2 हम लेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। It is about people who are going to come to the holy mountain. ये उन लोगों के बारे में है जो उस पवित्र पर्वत में आने वाले हैं। They are the people who follow Shabbat. वो ऐसे लोग हैं जो शब्द का पालन करते हैं। They are the blessed people. वो आशीषित लोग हैं। Now, if you see the teaching of Jesus Christ, अगर हम यीशु मसीह के शिक्षा को देखेंगे तो how many of us know Jesus never prepared a message? कितने लोग जानते हैं कि यीशु कभी प्रचार तैयार ही नहीं किए। When he sees people, जब वो लोगों को देखते थे, he starts preaching. बैठते तुरंत प्रचार शुरू कर देते He हैं। never prepared any structured message. वो कोई स्ट्रक्चर्ड मैसेज तैयार नहीं किए हैं। He was meeting the need of the people. वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे।
He was speaking about light, वो ज्योति के बारे में बात कर रहे थे, where there were people's eyes was blind, people's spiritual eyes was blind. He was speaking about light. जहां पर लोगों का आत्मिक आंख बंद था, वहां पर वो ज्योति के बारे में बात कर रहे थे। When he has to teach about Shabbat, he is teaching that. जब शबात के विषय में सिखाना था तो वो सिखा रहे थे। So without prepared message to preach, it is a dangerous matter. और प्रचार बिना तैयार करके बात करना एक बहुत डेंजरस काम है, Because this means you have to know the entire Bible. क्योंकि इसका मतलब आपको पूरा बाइबल अच्छे से जानना होगा। One person shares the problem, एक व्यक्ति समस्या बांटते हैं, then the person who is preaching should have the answer by heart. तो जो व्यक्ति प्रचार करता है उनको उसका उत्तर अपने मन में ही तैयार रखना होगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Isaiah, chapter 58, verse 13 to 14. यशायाह 58 उसका 13 और 14 हम देखेंगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपने ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। Now God says, call Shabbat a delight. परमेश्वर कहते हैं कि शब्द को एक आनंद की बात मानो। What is delight? आनंद की बात क्या है? You getting excited. कि आप उसके लिए उत्साहित हो जाते हैं। Now for getting excited, I'm going to give you one example. उत्साहित होने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूँ। I have to give this example, otherwise I cannot connect correctly. मुझे ये उदाहरण देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। A boy and a girl. एक लड़का और एक लड़की। Sorry. Husband and wife. एक पत्नी और एक पति। That is immediately after marriage. विवाह के बाद। They are meeting for some intimate relationship. वो कुछ गहरा रिश्ता के लिए मिलते हैं। You know, there is an excitement which is going on. अंदर एक उत्साहित और एक एक्साइटमेंट होती है, एक आनंद होता है। I'm going to meet. कि मैं उससे मिलने वाला हूँ। I hope the way you all are looking at me, I'm getting scared now. जिस रीति से आप सब मुझे देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। You are looking as if, Pastor, actually we don't know all those things. What are you talking? Like that you're looking now. आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पास्टर ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। See, my focus now is to make you understand. मेरा अभी ध्यान इसमें है कि आपको ये बात समझना होगा। Now don't deviate and go to something else now. आप डिविएट होकर कहीं और न जाएं। Now the delight. और अभी जो आनंद है, you're waiting for the time. आप उस समय के लिए इंतजार करते हैं। The best way I can say is if you had a love marriage. और सबसे श्रेष्ठ बात मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आपका लव मैरिज हुआ है। I will say it in nowadays terms. मैं आजकल के शब्दों में कहूंगा। Nowadays it is not love marriage. आजकल लव मैरिज नहीं है। Like love marriage. लव मैरिज जैसा। That means after engagement, the boy and girl will take the number of each other. इसका मतलब है एंगेजमेंट के बाद लड़का लड़की अपना नंबर एक्सचेंज करेंगे and start texting. और टेक्स्ट करना शुरू करेंगे। Now the love is starting. और अभी प्रेम बढ़ जाता है। Most cases it's like that, right? कई बार ऐसे ही होता है। Okay, you all have decided to be like statue. You don't. आप सब मूर्तियों के समान बनने के लिए निर्णय Okay, fine. I'm not asking you anything. Okay, don't ठीक है, मैं आपसे I think you are getting too embarrassed, right? आपको बहुत No. See, I now they ask me normally.
वो मुझसे नॉर्मली पूछते हैं Much of the लोग। times they don't understand me as pastor कई बार लोग मुझे पास्टर जैसे नहीं समझते, because I don't show any difference in dress. क्योंकि मैं वस्त्र में कोई डिफरेंस नहीं दिखाता हूँ। And when I talk so normally. और जब मैं बात करता हूँ बहुत नॉर्मल बात करता I हूँ। don't use hallelujah every 2 minutes. हर 2 मिनट में हालेलुया नहीं यूज करता। That artificial. Praise the Lord, brother. और वो आर्टिफिशियल प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, How are you? कैसे हैं? Hallelujah. हालेलुया। You talk to me very normal. आप मुझसे बात करेंगे तो बहुत नॉर्मल। Me and my wife go out anywhere. मैं और मेरी पत्नी जब कहीं बाहर जाते हैं, Nobody will know किसी को मालूम नहीं होगा, because my wife has jewels. क्योंकि मेरी पत्नी ज्वेल्स पहनती। We don't want to show difference there and all. हम वहां पर फर्क नहीं दिखाना You see, चाहते। we are wearing white sari, white shirt. No, मैं सफेद कपड़ा ही पहनता हूँ, व्हाइट शर्ट पहनता हूँ। sit down. There is the work which we have to do. बैठो, वहीं पर हमें काम करना है। Now this delight, na? You meet your loved one. और अभी वो जो आनंद आता है जब आप आपके साथी से मिलते हैं। I'm going to meet her. मैं उससे मिलने वाला हूँ। So today actually we did a special sweet in our house. आज हमारे घर में एक विशेष स्वीट हमने बनाया है। So you take that sweet to go and give it to that girl who you love. तो हम उस स्वीट को लेकर जाते ताकि हम उस लड़की को देंगे। And she's going to come at 7 o'clock. और वो 7 बजे आने वाली है। Okay? People married for too long, I'm not talking about them. और जिनका शादी बहुत समय पहले हुआ है, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। Because that is the category which forgets the marriage anniversary, okay? और वो कैटेगरी है जो अपना मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं। Okay, I'm not talking about that मैं category. उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा The हूँ। initial time they say, okay, fine, and 7 o'clock I'm going to meet. Okay, fine, 6:50, she's going to come now. That excitement is there. और शुरुआत के समय में जो प्रेम होता है, अरे 6:50 7 बजे वो आने वाली है, और वो जो आनंद मन में भर जाती है। And the girl is sitting and the boy is sitting. और लड़का बैठ रहा है, सॉरी, लड़की बैठी है, लड़का बैठ रहा है। Now the boy is asking the girl, अभी लड़का उस लड़की से पूछ रहा है, I bought something for you today. मैं कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। And the girl makes all facial expressions. और लड़की सारे भावना दिखाती है। Everything after all this. सब कुछ करने के बाद Now she's and say, hey, tell now, please. ए now." बताओ ना क्या है, बताओ ना। And now the boy says, और अभी लड़का कहता है surprise. सरप्राइज। Now the boy gives a sweet. अभी लड़का वो स्वीट देता है। And the girl very stylishly picks a very small and she just tastes, and this boy is very eager to listen what the girl is going to say. और वो लड़की बहुत स्टाइलिशली उस स्वीट को लेकर खा के फिर वो लड़का इंतजार करता है कि वो लड़की क्या कहेगी। Why I am telling all this? मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? Delight. आनंद। To tell you that delight. और उस प्रसन्नता, उस आनंद को समझाने के लिए। Not like crying, going, array, I have to finish one formality, I have to go to church, otherwise God is going to hit me, beat me. Not like that. और ऐसा नहीं है कि हम रोते जा रहे, क्या यार कलीसिया जाना ही होगा, नहीं तो प्रभु मुझे मार देंगे। ऐसे कलीसिया जाने के लिए You नहीं। go and sit in that Shabbat. आप उस शबात में बैठते हैं। Array, wow. अरे वाह। Now you know many people are telling one excuse. कई लोग एक एक्सक्यूज देते हैं। I can't sit down for 3 hours. No, I can't sit. मैं 3 घंटे के लिए बैठ नहीं सकता ना। No, that is the issue. ये ही समस्या In है। office you can sit for 8 hours. आप ऑफिस में 8 घंटे बैठ सकते हैं। When you travel, you can sit in the bus and train for 8 hours, 10 hours, 12 hours. You can sit. जब यात्रा कर रहे हैं तब बस में 8 घंटा 12 घंटा बैठ सकते हैं। But sitting in the presence of God, that you sitting for God to do the work, you don't want to sit. प्रभु के लिए बैठना ताकि प्रभु हमारे अंदर काम कर सके, उसके लिए हम बैठ नहीं पाते। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। David danced before the ark. दाऊद वाचा के संदूक के सामने नाचा।
He danced as if he is having an affair with God. और ऐसे नाचा था कि जैसे उनका एक अफेयर था परमेश्वर के साथ, Like he was dancing in front of a girl. और जैसे वो एक लड़की के सामने नाच रहा है, That much excited. उतना प्रसन्नता और उत्साहित था। Some people think कुछ लोग सोचते हैं that is going to heaven is स्वर्ग जाना it is a particular place वो एक जगह है and everything gets started, happiness, joy, everything gets started that time. और आनंद और खुशी सब कुछ वहां पर आ जाती है। नहीं, It should start here. यहाँ से उसका शुरुआत You are होता है। starting it in this Shabbat आप इस शबात में शुरू करते हैं, and there it is fully Shabbat. वहां पर पूरा शबात हो जाता है You're excited, that excitement continues. और वो उत्साहिता लगातार जारी रहती है। In my father's house there are many rooms. मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं। I will go and prepare a mansion for you. मैं तुम्हारे लिए जाकर एक जगह तैयार करूंगा। The nickname for bedroom is mansion. बेडरूम का और एक नाम है मैंशन। I will sit with my Lord there. मैं वहां पर प्रभु के साथ बैठूंगा। I will be delighted with my Lord there. मैं प्रभु के साथ वहां पर आनंदित रहूंगा। If you love the Lord, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, He fulfills the desires of your heart. वो आपके हृदय को के इच्छाओं को पूरा करेंगे। Psalms 37 verse 4. भजन संगीता 37 उसका 4। Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Take delight in the Lord. परमेश्वर में तुम आनंद मनाओ। Tomorrow morning I am going to pray. कल सुबह मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। I'm excited. मैं बहुत आनंदित हूँ। I am going to sit in the presence of मैं God. प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला हूँ। So first, even before coming, you put the music on. तो इसलिए आने से पहले ही हम म्यूजिक को चालू कर देते Now हैं। when I come to my office room, जब मैं अपने ऑफिस रूम में आता I हूँ, have a very small speaker. एक छोटा सा स्पीकर होता है मेरे The पास। effect is very good. उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। So as soon as I come in, the song is started. और जैसे ही मैं अंदर आ जाता हूँ तो मैं गीत शुरू कर So देता हूँ। first, by the time I am setting to sit, और बैठने के लिए जब मैं सेट करता हूँ तो that time itself, the praising God is started. उसी समय में प्रभु का स्तुति करना शुरू हो जाता है। The sad moment comes when we have to end it. और बहुत दुखी समय तब होता है जब हमें समाप्त करना Then है, we have to go out. फिर हमें बाहर जानी है। So, my dear child of तो God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, being in the presence of God, God's presence is always there, but in that Shabbat, if we sit, it is a great experience. जब हम शबात में बैठते हैं तो वो एक बहुत अलग ही अनुभव है, बड़ा अनुभव है। The final three things which I want to say now. आखिरी 3 बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। You don't go on your own way on Shabbat. हम हमारे मार्गों में नहीं जाएंगे शब्द के दिन में। Number 1, पहला है, you don't go on your own way. हम अपने मार्ग में नहीं जाएंगे। What is not going on our own way? अपने मार्ग में जाना इसका मतलब क्या है? What you did on other days, you are not supposed to do this day. जो हम बाकी दिनों में करते हैं उसको हम इस दिन में नहीं करेंगे। Now, you might have many questions. आपके मन में शायद बहुत सारा प्रश्न हो सकता है। Can I go and purchase vegetables and come? क्या मैं जाकर सब्जी खरीद के आ सकता हूँ? Or you have to answer. आपको ही उत्तर देना है। If you do that on other 6 days, then don't do it on this day. अगर आप उस 6 दिन में किसी एक दिन में कर रहे हैं तो अभी उस दिन में ना करें। Simple, as simple. बहुत आसान है। What you do on other 6 days, don't do on this day. जो आप बाकी के 6 दिन में करते हैं वो यहाँ पर ना करें। Number 2, दूसरा, you don't do as you please. अपने आप को प्रसन्न करने वाली बात मत करें। You don't seek your pleasure. आप अपने इच्छा को पूरा न करते हैं। Number 3,
तीसरा, you don't speak your own words. आप अपने खुद के शब्दों को नहीं कहते हैं। So 3 things I repeat. 3 बातें मैं आपसे बता रहा हूं। You don't go your own way. आप अपने मार्ग पर नहीं चलते। Number 2, दूसरा, you don't do as you please. अपनी इच्छा पूरी न करें। Number 3, तीसरा, you don't speak your own words. अपनी बातें न करें। Turn your Bible to Leviticus chapter 23 verse 3. ले व्यवस्था 23 उसका 3 हम लेंगे। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वें दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। 6 days you have. 6 दिन आपके पास है, No, but 1 day out of that 6. पर उस 6 दिन में एक दिन, No, after 6 days, that 1 day, 6 दिन के बाद वो एक दिन it is for God. प्रभु के लिए है। We have to give that to God. हमें उसे प्रभु के लिए देना होगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, set 1 day aside. एक दिन हम अलग करेंगे। And definitely, no, I am not willing to answer questions today. Because if anybody has any question, they can maybe send the WhatsApp or anybody has any question? किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? Anybody you want to ask anything? Nobody. Yeah. Did you understand? Everybody क्या understand? आपको समझ में आया? How many of you say it is a benefit that I heard this message? कितने लोग ऐसे मानते हैं कि ये एक लाभ था? Praise the Lord. Praise the Lord. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, sitting in Shabbat is not an ordinary matter. शबात में बैठना एक साधारण बात नहीं है। You reject it, अगर आप उसको इनकार कर देते हैं then it is going to be a problem. तो ये एक समस्या हो जाएगा। Let us sit for Shabbat. हम शबात के लिए बैठेंगे God do the work inside us, और प्रभु हमारे अंदर काम करेंगे and a good result will happen. और एक अच्छा प्रतिफल हमें मिलेगा। Shall we close our eyes? अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much for this time. इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। Help us to sit down in your presence. हमें सहायता करे कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ पाए। Do the work inside us हमारे अंदर आप काम करें प्रभु, so that we can reach the eternal rest. ताकि हम उस अनंत विश्राम में प्रवेश कर पाए। Bless everyone who are seeing this. हर एक को आशीष दे जो देख रहे हैं। Your grace rest upon them. आपका अनुग्रह उनके ऊपर रहे। Give them the mind to sit in your presence. आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए उनका मन तैयार करें We प्रभु। thank you so much, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं We give प्रभु। you the glory. हम आपको महिमा देते हैं। In matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Praise the Lord, my dear children of God. प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों। I am sure God has spoken to you. मैं निश्चित जानता हूँ कि प्रभु ने आपसे बात किया है। Take a decision today, आप आज एक निर्णय लें, not tomorrow, कल नहीं not another one day. और एक दिन नहीं, In 7 days, which day you're going to give? 7 दिनों में से आप कौन सा दिन प्रभु के लिए अलग करेंगे? Any day is okay, कोई भी दिन ठीक है, but give God time पर प्रभु के लिए आप समय दें and we get prepared for the eternal life. और हम अनंत जीवन के लिए तैयार होंगे। Tomorrow I'm going to meet you with some very important news happening across the world. कल कुछ बहुत मुख्य न्यूज़ के साथ मैं आपसे मिलूंगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you.